Hello everyone, welcome to Learn English with Rodhan Yadav. In this video, I will discuss a very important English grammar topic which is determiners in English grammar. So what are the determiners? Determiners is a word placed in front of noun to specify quantity like one dog, many dogs, quantity. For quantity, you can use determiners. Determiners is an important topic of last 10th, ninth, and for competitive exam as well 9th, 10th English grammar and for competitive exams. So where we use these determiners, what is determiner? This will be cleared in this today's video upon determiners. What are determiners? Uses of this, that, those, these. So these article a and the and demonstratives. Yes, guys, demonstrative. Which are these, that, those, these. So determiners are defined simply put in English through determiner is a word introduce a noun. Who determine the noun introduces a noun is called determiners, guys, or provides the information about quantity of a noun. So provides information how much the noun it is. So that's called a determiner. It always comes before a noun. It always placed before the noun and not after. It also comes before adjective and describe the noun. It comes before adjective as well and describe the noun. What it does the description of noun. So let's understand in today's video, like determiners are used in front of nouns to indicate whether you are referring to something or specific, like possessive, ordinals, numbers, articles, and the quantifiers, predeterminers. These will be discussed in today's video. So watch this video till end to understand complete uses of this, that, those, these, a and the and determiners. Yes, these things are called determiners in English grammar. Let's now move to second slide and understand the types of determiners. Yes, what are the types of determiners? First of all, let's have a look upon determiners. First of all, the article a and the is a determiner used before the noun and tells specify the noun. So second is demonstrative, guys. Demonstrative specify the proximity of the word or the phrase. The four demonstrative determiners in English are, तो चार जो determiners के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं वो होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये आपने काफी ज्यादा सुना होगा. दिस इज अ कार, दैट इज अ पर्सन, दैट इज अ बिल्डिंग, दोज पीपल आर नॉट गुड, दीज आर गुड पीपल. तो ये सारे वर्ड आपने इंग्लिश में जरूर सुने होंगे. आइए आज इसका यूजेस समझ लेते हैं जिससे कि स्पोकन इंग्लिश में हमें हेल्प हो. सो द थर्ड डिटर्मिनर इज पोजेसिव. पोजेसिव विच यू ओन. सो पोजेशन के लिए ये मैं प्रोनाउन में भी समझा चुका हूँ, और जहाँ पे आपका हक हो वहाँ पे आप हिज, हर, माइन, आवर, माई, तो हाँ ये यूज करते हैं. द फोर्थ डिटर्मिनर इज क्वांटिफायर. तो क्वांटिफायर होता है जिसमें वे कर सकते हैं, लाइक जो दो तरीके के होते हैं गाइस. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. ऑर्डिनल जिसमें नंबर होते हैं, ऑर्डिनल जिसमें नंबर नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, ये वाले. तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स जो हैं, है ना गाइज. और नंबर्स देखते हैं क्या है. नंबर्स में दो टाइप के. सो फ्यू, लिटिल, सम, ये नंबर्स नहीं है. ये क्या है, ये आपके हैं क्वांटिफायर. और लिटिल जो हम वे कर सकते हैं वो कॉर्डिनल होते हैं, लाइक वन टू, है ना. और जो नहीं कर सकते वो ऑर्डिनल होते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज विच आर अ व्हाट डेमोन्स्ट्रेटिव्स, है ना. ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी कहलाते हैं और उनके यूजेस काफी ज्यादा है. दिस इज अ बॉल, दैट इज एन एप्पल. ये कैसे कहाँ पे हम यूज करें उसका यूज हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. वैसे तो डिटर्मिनर्स काफी सारे होते हैं. मेरा फोकस आज की इस वीडियो पे है दिस, दैट, दोज, दीज के यूजेस को समझाने के लिए. चलिए नेक्स्ट वीडियो में दिस, दैट, दोज के यूजेस ही समझ लेते हैं गाइस, है ना. तो यूजेस ऑफ दिस, दैट, दोज, दीज एंड these are some demonstratives of a determiners, guys. This, generally speaking, we use these to refer people and things, situations and experience that are close to the speaker or very close in time. Okay, guys. So we use that those to refer people and things, situation, experience that are more distant either in time or physically. So we use this for that. Like जो हमारे पास होती है guys. Yes. तो this और that हमारे प्लेस को बताता है, पास और दूर को बताता है. तो दिस जो होता है वो सिचुएशन जो कि हमारे पास होती है, और दैट जो होता है दूर होती है, डिस्टेंट पे होती है, उसके लिए यूज करते हैं गाइस. दैट इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग. वी यूज इट एज अ डिटर्मिनर, जिसको हम एक डिटर्मिनर की तरह यूज करते हैं गाइस. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो यहाँ पे हम
जो दैट है वो थोड़ी दूर की चीज़ों के लिए स्पोकन और राइटिंग दोनों में यूज़ करते हैं। और आप इमेज के थ्रू भी समझ पा रहे होगे, देखो जो नियर है वो दिस है और जो फार है वो दोज दैट है, ठीक है गाइज। और दोज का भी देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, वी ऑल्सो यूज इट एज अ कंजक्शन एंड इंट्रोड्यूस दैट क्लॉज। तो ये बहुत सारे तरीके से यूज हो सकते हैं, वही ग्रामेटिकली बताया गया है गाइज। दीज तो दिस क्या होता है, दीज जनरली स्पीकिंग, दिस जो होता है वो यूज टू पीपल एंड थिंग सिचुएशन एक्सपीरियंस दैट आर क्लोज टू स्पीकर और वेरी क्लोज इन टाइम। जो ज्यादा पास होते हैं, क्लोज होते हैं दीज, बट ये प्लूरल है गाइज। इसमें कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर प्लूरल का। दीज बहुत सारे के लिए हो जाता है, ठीक है गाइज। और ये पास की चीजों के लिए दीज यूज होता है ना। जैसे यूज दैट दोज रेफर टू पीपल एंड थिंग सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस दैट आर मोर डिस्टेंट टाइम और फिजिकली। दोज जो होता है व्हेन वी स्पीक ऑफ समथिंग इन डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल दोज बुक्स। तो जो चीजें दूर रहती है बहुत सारी, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, दोज का यूज करते हैं गाइज। सो लाइक देयर आर फ्यू फीट अवे, वी यूज दीज, the books are really close or to us. When we hold books, remember to always those and these with plural nouns। तो plural nouns के साथ singular plural का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सिंगुलर प्लूरल की वीडियो आई बटन में देख लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं इनको सेंटेंसेस में और फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू, जिससे ज़्यादा क्लियर होता है हमें। सो द मैन इज बिहेविंग सो स्ट्रेंजली। तो ये मैन बहुत स्ट्रेंजली, तो द का यूज हो गया। दीज एप्पल्स आर गुड, ये सेब अच्छे हैं, तो यहाँ पे दीज का यूज हो गया। ये सब है ना प्लूरल सेंस में, जो सेब की आपको इमेज दिखाई थी पहले वाली स्लाइड में। हिज फादर इज आउट ऑफ द सिटी, उसके पापा। हर ब्रदर, ये पोजेशन दिखा रहे हैं। विच इज योर कार, पोजेशन दिखा रहे हैं। दोज मैंगोज आर रोटन, तो वो आम खराब हो गए। दोज जो है वो सब दूर के लिए। दिस प्लान विल वर्क, ये है पास के लिए, ये प्लान काम करेगा। पास के लिए गाइस दिस का यूज हो रहा है। दोस्त दूर के, वो मैंगो खराब हो चुके हैं, वो जो दूर रखे मैंगो खराब हो चुके हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब और क्विज में देख लेते हैं, आपको बताना है यहाँ पे। लीसा सॉ अ शूटिंग होगा, शूटिंग स्टार या एन शूटिंग स्टार। दिस इज माई कार होगा या माइन कार होगा। द मोर होगा, होल पाई होगा। दिस या दिस सेल फोन क्या होगा, दिस सेल फोन इज बिग या दिस सेल फोन इज बिग। तो दिस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से इसको लगाए। दैट होगा या दोज होगा, इसको सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग ही चेंजेस करें इसका। एंड यहाँ पे आपको क्लियर रखना है आपको चीजों को, ठीक है। सो अ डोर होगा, द डोर होगा या एन डोर होगा। द डोर इज लॉक, ठीक है। द होगा, इजी है। ये आर्टिकल्स आपको मैं पहले भी वीडियोस में करा चुका हूँ, वो आप कर लेंगे। हैज शी गॉट फ्रेंड्स, एनी ऑफ आइदर, ठीक है। डैश लव्स स्टोरी, मोस्ट ऑफ, है ना। ज़्यादातर बच्चों को स्टोरीज पसंद होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।